So in this chapter we have discussed different forms of the water resources. 15 students are present. Today we will discuss about the how the ocean water circulated. Circulated means like this. कि कैसे एक जगह से from one place to another how this water circulated. Okay. So these are the three forms in which water circulated. First form है waves. Waves, you know, simple waves you can see inside the ocean. Ocean में आप देख सकते हो near the coastal area or you can see the sea waves. Second one is the tide. What is the tide? Later on I will explain. Third is the current. अब ये करंट नहीं है, those flow in electricity जो वायर में फ्लो होता है ना, that not current. This is not current. It is the different from that. ये उनसे अलग है current. Okay. So these are the three forms in which what ocean water, not an ocean water, circulated. So today we will discuss the first one, waves. Now waves are, you know, very simple. कि what are the waves? Yes, waves are the like this rhythmic rise and falls of water. Rhythmic rise and falls of water जो रिदम से उठता है नीचे गिरता है like up and down. अप हो रहा है एंड डाउन. This is known as the waves. इसको क्या बोलते हैं? Waves बोलोगे. You know waves? Like waves वाटर की भी होती है, साउंड की भी होती है, waves इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है उसमें भी waves होती है. So you know this is rise and falls of the water that is known as the waves. अब there are three factors. Those play those may be affect the height of this waves. अब इसकी हाइट कैसे इंक्रीज हो सकती है लाइक? तो which are the three factors which affect the height of waves? नॉर्मली वेव्स ओशियन के अंदर एक सिंपल फॉर्म में चलती है, एक सिंपल हाइट पे, बट सम टाइम उसकी हाइट एक इंक्रीज हो जाती है 10 to 15 मीटर. तो व्हाट आर द three factors which play the important role in waves? So earthquake, landslide and volcano. First factor is underground landslide. First factor is underground landslide. Underground landslide means inside the ocean. Inside the ocean, when any mountain or maybe located inside the mountain, जैसे कि अब आप सोचोगे inside ocean mountain कैसे होगा सर? Dear, टाइटैनिक ओशियन दोस्त स्ट्रक जो टकराया था वो inside एक माउंटेन था, उसी से टकराया था. तो inside ocean भी माउंटेन्स होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, यू नो, बड़े माउंटेन. तो समटाइम व्हाट हैपन, दोस underground landslides होती है. Suppose any rocks part, any such ice part may be broken down and falls inside the ocean water, so it will be increase the height of waves. इससे क्या होगी? waves की height बढ़ जाएगी. किसकी वजह से? landslides की वजह से. You know ना landslide here? कोई भी बड़ा रॉक्स या आइस का या मे बी लैंड का या रॉक्स का वाटर में गिर जाना या इनसाइड ओशन वाटर. तो थ्रू दिस एक्टिविटी इट इंक्रीज द हाइट ऑफ वेव्स. इससे हाइट इंक्रीज होती है. दिस वन इज द फर्स्ट फैक्टर. सेकंड वन volcanic eruption. You know, very simple. अगर inside the ocean volcanic eruption होता है या sometime it may be the on land part, तो जो you know volcanic eruptions होता है
Due to the dead volcanic eruptions, just such a blast sound will become, एक बहुत बड़ा blast का sound आएगा और later on vibration may be feel, इससे क्या होगा, वाइब्रेशन होगा जिसको हम earthquake बोलते हैं. Due to that what happens, vibration may be here, okay, और due to that vibration height of waves may be increased. So this one is the second factor which may be increase the height of waves, जो वेव्स की हाइट को बढ़ा सकता है. सेकेंड वन इज द वोल्केनो. वोल्केनिक एक्टिविटी इज द सेकेंड फैक्टर व्हिच मे बी इंक्रीज द हाइट ऑफ दिस वेव्स. थर्ड वन इज द earthquake. Earthquake may be happen sometime or it may be increase the height of waves. Sometime earthquake आता है, vibrations होता है. Sometime due to the earthquake one plate may be moved inside the ocean. So in such condition when an earthquake may be come, तो such waves height may be increased 10 to 15 meter कितनी भी जा सकती है. तो these are known as these are three factors which increase the height of waves. So are you getting my point or not, or shall I repeat? Yes, sir. सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है कि ऐसी कौन सी तीन चीजें जिनसे वेव्स जो तरंगे होती है ना उसकी हाइट बढ़ती है. तो आप किसी भी वाटर कहीं पे भरा हुआ है, आप उसमें स्टोन डालोगे, इट में भी राइज अप, ऊपर आएगा निकल के. तो ये वाला तो हो गया अंडरग्राउंड लैंडस्लाइड, मतलब स्टोन या कुछ भी गिरना. सेकंड वोल्केनो, अगर आप उसके पास में कोई भी एक कोई भी वाटर फिलअप कर रखा आपने किसी जार के अंदर और क्रैकर्स यूज करते हो, पास में जाके बहुत बड़ा एक क्रैकर चलाते हो उसके पास में, तो व्हाट हैपेंस, वाइब्रेशन होगा. वाइब्रेशन से क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा. ओके, तो दिस इज द सेकंड वन, वोल्केनो. एक वाइब्रेशन होता है साउंड के साथ. अर्थक्वेक, व्हेन वी वाइब्रेट, आपने किसी में वाटर फिलअप कर रखा है, अब उसको वाइब्रेट करना, हिलाना, तो हिलाने से क्या होगा, पानी बाहर गिर जाएगा. तो दिस वन इज द थर्ड, दोस इंक्रीज द हाइट ऑफ वेव्स. So these are three factors which increase the height of waves. Shall we proceed on next topic? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब next one है tide. What is the tide? अब टाइड नॉट ए डिटर्जेंट पाउडर, ये नहीं है. टाइड उसी बेस पे देखो. व्हाट इज द टाइड? टाइड होता है, एक सिंपल सी डेफिनेशन इज गिवन इन योर बुक, रिदमिक राइज एंड फॉल्स ऑफ वाटर ट्वाइस इन डे, दैट इज नोन एज द ट्वाइस. अब रिदमिक मींस इन वन रिदम, इन ए रिदमिक राइज अप ऑफ वाटर. ओके, और फॉल्स होना, ये ऊपर डाउन हो गया. This happens twice in day, दिन में दो बार ऐसा होता है जब ओशन वाटर लेवल इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है. दिस इज नोन एज द टाइड. अब जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द ओशन वाटर. Zero, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, like 70 meter from sea level. Okay, so this is the ocean water. ये ocean water है. अब ocean water may be increase 40, ये है अभी 40. अगर ये डिक्रीज हो गया 40 चला गया तो वाटर लेवल डिक्रीज हुई. ओके, वाटर लेवल डिक्रीज हो गई 40 चला गया. और इट में भी अगर वाटर लेवल इंक्रीज हो गए 45 आ गया तो दैट इज द राइज ऑफ वाटर. राइज अप मतलब वाटर का ऊपर उठना. ये तो रिदमिक राइज मतलब एक दो बार उठता है, दो बार नीचे गिरता है वाटर. दैट इज नोन एज द टाइड्स. इट इज द रिदमिक राइज एंड फॉल्स ऑफ वाटर ट्वाइस इन डे, दैट इज नोन एज द टाइड्स.
जब ओशन वाटर दिन में 2 बार गिरता है, जैसे सपोज 40 पे आ गया, ये 40 पे नॉर्मली, अगर ये यहाँ से 45 चला जाता है, इंक्रीज हो गया इतना, तो डेट इज नोन एज द टाइड, इंक्रीज हुआ। अगर सपोज 40 से डिक्रीज होके यहाँ आ गया, डेट इज नोन एज द टाइड। तो दिस इज नोन एज द टाइड। Tides are two types. One is the nip tide, another one is the spring tide. Spring tide. तो टू टाइप्स का टाइड होता है बेटा, निप एंड स्प्रिंग। ओके, निप टाइड को हम कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, व्हेन अ वाटर लेवल डिक्रीज, जब वाटर लेवल डिक्रीज होती है, दैट इज नोन एज द निप टाइड। व्हेन अ वाटर लेवल इंक्रीज, ओशन वाटर लेवल, व्हेन अ ओशन वाटर लेवल इंक्रीज, दैट इज नोन एज द स्प्रिंग टाइड। तो स्प्रिंग टाइड में वाटर लेवल इंक्रीज होती है एंड निप टाइड में वाटर लेवल डिक्रीज होती है। टिल here are you able to understood or not? यहाँ तक फिर Yes, sir. Yes, sir. okay, Yes, sir. why this happens we'll discuss। ऐसा क्यों होता है कि why this nip tide and spring tide क्यों होता है ऐसा, why this happens on the earth? You know, are you able to see the chalk? Yes, sir. Okay, see Yes, sir. what happens, So you dropped. so why this is drop downwards, why not the upside? Because of the gravitational force of Gravity. Earth. Very good, due to Gravity. the gravity force, very good। ये अर्थ है बेटा, ओके, अर्थ। तो you know sun और moon, तो you know this all three have the gravity, this both have the gravity force। देखो ओशन वाटर कहाँ है, अर्थ पे, ओशन वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, तो एक्सपेरिमेंट विल बी हेल्ड ऑन द अर्थ, अर्थ पे एक्सपेरिमेंट होगा। तो विच आर द टू बॉडीज विच ग्रेविटी फोर्स विल बी वर्क ऑन द अर्थ? तो अर्थ पे जो हमारे पास में जिनका ग्रेविटी फोर्स जो वर्क करेगा, दैट इज वन इज द सन और वन इज द मून। ओके, एक सन है एक मून है, Yes, sir. तो विच ग्रेविटी फोर्स, किसका ग्रेविटी फोर्स ज्यादा होता है बेटा, विच वन? यू डोंट नो What, sir? विच सन एंड मून, तो विच ग्रेविटी फोर्स इज हायर, किसका ज्यादा है, सन एंड मून? Sun. The सन, sun. Sun. वेरी गुड, सन। तो विच ग्रेविटी फोर्स विल बी वर्क ऑन द अर्थ सरफेस मोर इफेक्टिवली, सन का या मून का? अर्थ सरफेस पे किसका ग्रेविटी फोर्स ज्यादा लगेगा? So The moon. moon. यस, The So moon. moon. The moon. why? Moon is correct answer, moon is correct answer, but why? So because moon is more closer to Earth than sun. Very Yeah. excellent, because distance between the sun and earth approximately 15 crore kilometer। ये 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है बिटवीन द सन एंड अर्थ, और मून approximately 3 लाख किलोमीटर, ये डिस्टेंस 3 लाख किलोमीटर का है। That's why moon gravity force effectively work on the earth surface compared than the sun। Logic is clear, I am repeating again। Yes, sir. Sun gravity force is more higher compared than the moon, but moon gravity force effectively work on the earth surface due to the closure or due to the distance, because between the earth and moon there is the 3 lakh kilometer distance, or between the earth and sun it is the 15 crore kilometer। That's why moon gravity force is effectively work on the earth। Okay, simple
see you next activity. This is the U pin. You know U pin जानते हो आप? Yes, Are you sir. the U pin or not? U pin जानते हो क्या बेटा? What is the U pin? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. You know the U pin or not? No, No, sir. sir. नो अरे यूपिन होती ना चलो सिंपल सा एक कोई भी एग्जांपल ले लीजिए यूपिन 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 होती है जो कॉपी में किसी में लगाते हैं ना यूपिन लाइक Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलो यूपिन को छोड़ो आप कोई भी ऐसा पिन ले लीजिए पिन तो यू नो ऑल पिन यू नो Yes, sir. जो ऑल पिन होती Yes, sir. जानते हो Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ पे मैंने कुछ पिन रखी हुई है पिन Yes, sir. यू नो दिस आर द मेटेलिक पिन ये मेटेलिक पिन है ओके Yes. दिस इज द Yes, मेटेलिक पिन अब मैंने एक मैग्नेट यहाँ रख दी दिस इज एम फॉर मैग्नेट मैग्नेट 1 सेकंड मैग्नेट 2 मैग्नेट नंबर 2 अब मैग्नेट 1 हो गई मून और मैग्नेट 2 हो गए सन क्योंकि ग्रेविटी फोर्स क्या होता है इट इज जस्ट लाइक ए मैग्नेट ना मैग्नेट ही तो होती है जो खींचती है अपनी तरफ ग्रेविटी फोर्स लाइक ए मैग्नेट ना इट इज लाइक ए मैग्नेट तो ये यूपी वही Yes. है और यूपी को मैं बोल रहा हूँ वाटर जस्ट एग्जांपल यूपी को मैंने बोला ओशियन वाटर ये ओशियन वाटर है M1 मून है M2 ओके मैग्नेट 1 मैग्नेट 2 so it will be attract the this pin or not Yes, sir. it will be attract or Yes, not sir. ये खींचेंगे अपनी तरफ Yes, sir. तो जब बेटा Yes, sir. इसको वाटर बना देता हूं मैं और ये अपनी तरफ खींचेंगे तो this water level will be increase or not Yes, sir. चलो ओके ये हो गया वन डायग्राम ए डायग्राम ओके अब जस्ट Yes, Yes, sir. sir. see the B diagram सेम डायग्राम है जस्ट आई एम चेंजिंग द लोकेशन मैग्नेट की लोकेशन चेंज कर रहा हूं ये वन मैग्नेट है और अनदर वन मैग्नेट यहां बना दी मैंने ये हो गया सन ओके मैग्नेट नंबर 2 तो अब एक मैग्नेट तो इधर खींच रही है एक मैग्नेट इधर खींच रही है ओके ग्रेविटी फोर्स से तो इन सच कंडीशन व्हाट हैपेंस एक मैग्नेट इधर खींच रही है एक मैग्नेट अपोजिट खींच रही है तो फोर्स किस में ज्यादा लगेगा फर्स्ट वन डायग्राम इन दिस डायग्राम So In this This- diagram. फोर्स सपोज yes, sir. Sir, because the Yes, sir. closer. लिसन बेटा आपको टू क्लासमेट टू आपके फ्रेंड पकड़ के इस साइड खींच रहे दोनों तो आप इधर तेज जाओगे कि वन इधर खींच रहा है एक साइड पे खींच रहा है तो आपका डिस्प्लेसमेंट किस में ज्यादा होगा So डिस्प्लेसमेंट first वाले में displacement ज्यादा होगा. इन विच So The first first वाले one. में displacement ज्यादा होगा. यानी वी कैन से कि डिस्प्लेसमेंट किस में ज्यादा होगा व्हेन ऑल आर थ्री इन सेम डायरेक्शन लाइक दिस तो डिस्प्लेसमेंट इस डायग्राम में ज्यादा होगा कि इस वाले में Sir, in Sir, right. the right one. Sir जिसमें दोनों मून एंड सन एक साथ. यस वेरी गुड तो ये आपका टॉपिक है कि व्हेन ऑल आर थ्री इन सेम डायरेक्शन अर्थ मून एंड सन तो दिस इज नोन एज द स्प्रिंग टाइड इसको स्प्रिंग टाइड बोलते हैं व्हेन ऑल आर थ्री इन सेम डायरेक्शन तो वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगी व्हेन ऑल आर थ्री बट व्हेन सन एंड मून
in rectangle form. This is the rectangle beta. ये rectangle बन रहा है. Yes, sir. So when a moon, sun or earth in rectangle form, तो it will be the nip tide. Water level decrease होगी. तो spring and nip tide समझ में आया थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो okay. Yes, sir. अब मैं इसको और इजी समझाता हूँ. Interesting chapter. Earth, moon and sun. It is known as the springtime. मैंने मीनिंग पहले बता दिया आपको कि स्प्रिंग टाइड क्या होता है जब वाटर लेवल इंक्रीज होती है. दैट इज नोन एज द स्प्रिंग टाइड. ये डायग्राम ए हो गया. ओके. In B diagram, when moon, earth and sun, when moon and earth and sun are in rectangle position या opposite direction, तो that is known as the nip tide, जिसको हम nip tide बोलते हैं. तो ये हो गया आपका निप टाइड. और व्हाट इज द स्प्रिंग टाइड. तो स्प्रिंग टाइड की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप कि व्हेन अर्थ, मून, सन इन द सेम डायरेक्शन, तो दिस इज नोन एज द स्प्रिंग टाइड. और व्हेन मून, सन एंड अर्थ इन रेक्टेंगल पोजीशन, तो दैट इज नोन एज द निप टाइड. अब मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूं. अर्थ and moon, it is known as the spring or nip tide. The spring. Yes, Spring. correct. Spring. क्योंकि all three are in same direction. तो इससे क्या हो रहा है जब ये भी इंक्रीज कर रहा है इधर, ये भी इंक्रीज कर रहा है लाइक दिस, तो इसके वाटर लेवल इंक्रीज हो रही है. Like this. और in this ये हाइट पे जा रही है. Okay. अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि when this happens, okay, ये ऐसा कब होता है. You are studying class 6th or not? 6th study Yes, sir. बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I want to ask one question. कि why we able to see one side of moon? Why we unable to see another side of moon? क्वेश्चन था एक, था ना? Yes, sir. There was a question in class 6. हाँ, क्योंकि मैं क्लास 6 नहीं पढ़ा था, बट आई नो द ऑल द क्वेश्चंस. कौन कौन से क्वेश्चन आपने पढ़े हैं मुझे सब ध्यान है. आपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस, आपने व्हाट आर एस्टेरॉइड, व्हाट आर द मेटोराइड्स, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ग्लोब एंड मैप, what are the continents, what are the different, why is the northern hemisphere known as the land hemisphere, all the questions I know in my mind. तो ये क्वेश्चन था आपके कि why we unable to see the another side of moon. You answer. So because of Earth's rotation, we aren't able to see the other side of the moon. Answer with concern with moon. Answer में moon ही आएगा, अर्थ कहीं नहीं आएगा. Answer So बनाइए. the dark side isn't really any darker than the near side, like Earth. So it get plenty of sunlight. So we don't see the far side because the moon is tightly locked to the Earth. अब इसी आंसर को वन सेंटेंस में बोलो. चलो मैं बता देता हूँ, आप अपने आप को अपडेट कर लीजिए. Because we able to see one side of moon because it take the same time for rotation and for Revolution. Revolution.
क्योंकि इसके रोटेशन और रेवोल्यूशन में सेम टाइम लगता है, दैट इज द 28 और 27 डेज ये लगते हैं। आपको आया Yes, थोड़ा sir. आंसर ध्यान आया बेटा कि इट टेक द सेम टाइम टू कंप्लीट द वन Yes, sir. रोटेशन It वन was written रेवोल्यूशन। in the book. तो रोटेशन रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में इसको सेम टाइम लगता है। तो ये जब तक अपना रोटेशन और रेवोल्यूशन करता है तो हमें एक ही साइड दिखेगी हमेशा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और Yes, sir. चलो ओके Yes, Yes, sir. sir. सिंपल सा ये हमारे आंसर से सीधा आंसर। ओके आपको आंसर बताना है क्योंकि यू आर स्टडी इन क्लास 6। थोड़ा डायग्राम नीचे चल जाता है। ओके तो when entire moon is like this in this shape, this is known as the Purnima or Amavasya. Yes, sir. It is known as the दो होते हैं ना बेटा, वन इज द पूर्णिमा, अनदर वन इज द अमावस्या। जब फुल मून होता है Yes, sir. फुल मून नोन एज द The Purnima. पूर्णिमा। Purnima. इलेक्ट्रॉन साइज विल बी डिक्रीज, इसकी साइज डिक्रीज हो जाएगी। और इट इज कंप्लीट डार्क, ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डार्क हो जाएगा। इट इज नोन एज द Amavasya. Amavasya. again full dark a new moon, it is known as the new moon. New moon you know, Yes, sir. it is new moon, वापस new moon बनेगा, side will be increased, side will be increased, again side will be increased, side will be increased, ये लाइट आ गई और साइड इंक्रीज और फुल मून। तो इट इज द कंप्लीट राउंड ऑफ द मून, मून का रेवोल्यूशन और रोटेशन हो गया पूरा। तो बेटा ये 28 डेज लेता है, तो इट मीन से इसके लिए कितने डेज लगेंगे? Sir, 3. अरे 28 डेज टू कंप्लीट द एंटायर रेवोल्यूशन। तो इट मीन Yes, sir. इसके लिए 4 1/4 तो आने हैं 7. 7. 7. 7 7 7 हो गया फिर, तो 28 डेज हो गए। ओके अब मैंने ये अर्थ यहाँ पे रख दी। ओके दिस इज द अर्थ। अब आप मुझे बताइए कि इन दिस पोजीशन when will be spring tide and when will be nip tide will be held, कब nip tide आएगा और कब spring tide आएगा, बताओ जल्दी। You have only 5 minutes, hurry up। Sir, when moon is on the upper side, First week, second week, third week और fourth week। ओके अब बताइए when will be nip tide will be held, nip tide। तो nip tide की definition you know very well, when all three are in rectangle form। तो rectangle form कौन सी form में बना? फर्स्ट, ठीक है बेटा, फर्स्ट फॉर्म। Yes, sir. Yes, तो sir. फर्स्ट वीक हो गया, फर्स्ट वीक एंड yes, sir. ये रेक्टेंगल बना। ओके इन 3, तो फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर हम बोलेंगे कि फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ एंड लास्ट वीक ऑफ द मंथ कौन सा टाइड आएगा? निप टाइड, Nip tide. Neap tide. निप टाइड होगा। और
during Purnima and Amavasya, which tide? Spring tide. पूर्णिमा Yes. अमावस्या को क्या होगा? स्प्रिंग टाइड होगा, क्योंकि all three are in same direction. अब all three are in same direction, तो पूर्णिमा को and अमावस्या will be spring tide. तो यहाँ क्या होगा? स्प्रिंग फिर वाटर लेवल डिक्रीज यहाँ सबसे कम होगी, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज like this. So this is the complete diagram of spring and mid tide. अब मुझे बताओ आपको कितना समझ में आ गया? टुमारो आई विल रिपीट, डजंट मैटर. 70% आ गया क्या? नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ये डायग्राम में थोड़ा 70. होंगे. टुमारो आई विल रिपीट द डायग्राम और फिर मैं समझा दूंगा बेटा. तो जो भी डाउट है यू मे बी सेंड योर मैसेज. ओके Yes, sir. ओके. हैव अ गुड डे. और रिवाइज योर सिलेबस बेटा. मैं जिसको पढ़ाता हूँ आप थोड़ा रिवाइज किया करो, क्योंकि मेरी हैबिट है, मुझे कोई भी चीज ध्यान आती है ना तो मैं उसी चीज को आपके क्लास 6, 7 कैसे भी लिंक कर लेता हूँ. आई नेवर सीन योर ज्योग्राफी बुक. में बुक को कभी नहीं देखता आपकी को. चलो ओके. हैव अ गुड डे. Thank you, sir. ओके. Thank you, Thank you, sir. sir.